Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, everyone. Nisu Kumari, am I audible? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Yes, sir. Today is your first class information. Sir, actually, your voice is breaking. Hello. Yeah, hello. Audible. Sir, your voice is breaking sometimes. That's why I can't hear you properly. Oh, because this is a network problem. Yes, sir. There is 2 student, 3 now 3. Information security is a theory class and it's an optional subject. Subject information security ITP 706. Today's discussion is introduction of information security. Okay. So, what is information security? Actually, today I discuss the main part of information security and the whole syllabus, because first of all, you know that the syllabus, which is your syllabus and how to complete your syllabus. ठीक है? शायद 2 या 3 पार्टिसिपेंट हैं, स्टूडेंट प्रेजेंट है. So what is information security? Information security not only about to secure information. हम लोग use क्यों करते हैं? In modern days, information is a main part of any technology or any cyber security, because when we used to send information one sender to another sender, we always looking the security of information, because the security, without security, information is a valueless. Am I audible? Yes, sir. Hello. So what first of all, what is information security? हम लोग information security is जरूरत है हम लोगों को जाने. So information, what is information security? Information security is not only about securing information from unauthorized access. Information security is basically the practice of preventing unauthorized access, use, disclose, and information हम लोग को सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि or if information is secure,
3 audible? Hello? Hello? Sir, actually, Yes, your sir. voice is breaking sometimes. That's why I can't hear you properly. Oh, देखो अब ठीक है? Now audible? Yes, sir. अब ठीक है? तो नेक्स्ट क्या है? Information security program are built around 3 objectives. Information around 3 objectives, commonly known as CIA: confidentiality, integrity, or availability. So now we discuss the confidentiality. What is confidentiality? Confidentiality means information is not disclosed to unauthorized individual, entities, and process. For example, if we say I have a password for my Gmail account, but someone saw while I was doing a login into Gmail account, in that case, my password has been compromised and confidentiality has been breached. तो क्या है, अगर मैं कोई जीमेल अकाउंट ओपन करता हूं और मेरा पासवर्ड देके वो ओपन हुआ है, वो पासवर्ड अगर कोई आदमी को पता चल जाए कि मेरा जीमेल अकाउंट का पासवर्ड क्या है, तो क्या होगा? वो अलग आदमी मेरा जीमेल अकाउंट यूज कर सकता है, वहां पर मेरा कोई इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं रहेगा, इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरा जो सीक्रेट है और जो मेरा वर्क पेपर्स है वो अलग लोग को मालूम चल जाएगा, इसलिए कंपनी को और एक अथॉरिटी को वो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग दिस टाइप ऑफ प्रोसेस वी आर यूज्ड। कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया। इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी मीन्स मेंटेनिंग एक्यूरेसी एंड completeness of data. Hello? Integrity means maintaining accuracy and completeness of data. This means data cannot be edited in an unauthorized way. Unauthorized way. Unauthorized, that means data cannot be edited in an unauthorized way. For example, if an employee leave an organization, then in that case, data for that employee in all departments like accounts should be updated to reflect status to job left. So that data is complete and accurate. And in addition, only authorized person should be allowed to edit data. इसका मतलब क्या है? इंटीग्रिटी में हम लोग सोचो तुम एक व्हाट्सएप में और एक मैसेंजर में तुम लोग कोई एक मेल और कोई एक मैसेज भेज रहे हो, ठीक है? अगर बीच में वो मैसेज तुम जो भेजे हो वो ब्रेक करके मैसेज में कोई कुछ ऐड कर दे, some what is adding or deleted some message part, or the picture is deleted or the voice is modified, then your security ब्रेक हो सकता है। इसलिए इंटीग्रिटी करना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रिटी तुम जो मैसेज भेज रहे हो वो मैसेज सही तरीके से उस रिसीवर को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अवेलेबिलिटी। Availability means information must be available when needed. हम लोग जब चाहे वो मैसेज हम लोगों को मिलना चाहिए। हम लोग को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन हम लोग गूगल में कोई सर्च कर रहे हैं और मेल में कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, वो मेल शायद 1 ईयर पहले हम लोगों को भेजा था, लेकिन वो मेल हम लोगों को चेक करके वो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो इसलिए
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का अवेलेबिलिटी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं मिला, नहीं अवेलेबल हुआ हम लोगों के पास, तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, एम आई ऑडिबल नाउ? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Availability means information must be available when we need it. For example, if one need to access information of a particular employee to check whether employee has outstand the number of leave, in that case is required collaboration from different organization, talk like network, operation development, incident response, and policy or change management. Denying of service attack is one of the factor that can hamper the availability of information. ठीक है, नेक्स्ट क्या पार्ट आएगा इंफॉर्मेशन सिक्योर करने के लिए? नॉन रेपुटेशन. Apart from this, there is one more principle that we govern information secure program. This is non-repudiation. Means one party cannot deny receiving a message or a transaction, nor the other party deny sending a message or a transaction. ये क्या है? अगर हम लोग सोचो हम लोग एटीएम में कोई कैश विथड्रॉ करने के लिए गया है, ठीक है, तो तुम एटीएम में एटीएम कार्ड डाला, वहां पर 10,000 रुपये विथड्रॉ किए, लेकिन बैंक पे जाके बोलोगे कि मेरा जो रुपये है वो विथड्रॉ हम लोग नहीं किए हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है? हम लोग जो काम करेगा उसका प्रूफ रहेगा और वो हम लोगों को मानना पड़ेगा कि हम लोग वो काम किया है, क्योंकि हम लोगों का एटीएम वहां पर एक्सेस हो रहा है। ठीक है, और समझो one message sent a sender to a receiver and the screen शो हो रहा है कि वो मैसेज सेंड हो गया। व्हाट्सएप पे क्या होता है? व्हाट्सएप पे हम लोग जब एक मैसेज सेंड करता है, वन टिक लाइन आता है, फिर जो रिसीव होता है वहां पर दोनों टिक लाइन आ जाता है। वो तो मालूम है तुम लोगों को? हेलो? Yes, sir. तो ठीक है, तो अगर वो मैसेज वो सीन किया तो वहां पर एक ब्लू लाइन का डॉट, दो जो सिंबल होता है राइट सिंबल, वो दोनों ब्लू लाइन हो जाता है। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है? वो मैसेज रिसीव हुआ कि नहीं, वो मैसेज सीन हुआ कि नहीं। यही है मेन फंडा। ये हम लोग जो मैसेज सेंड करेंगे वो रिसीव किया है कि नहीं वो डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सेंडर टू रिसीवर एक प्रोटोकॉल यूज होता है, उस प्रोटोकॉल से वो हम लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, तो नॉन रेपुटेशन मीन्स वन पार्टी कैन नॉट डिनाई रिसीविंग ए मैसेज और ए ट्रांजेक्शन, नॉर कैन द अदर पार्टी डिनाई सेंडिंग ए मैसेज और ए ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, in cryptography, it is sufficient to show the message match the digital signature signed with sender private key, and that sender should have sent a message and nobody else could have altered it in transit. Or data integrity and authenticity are prerequisites for non-repudiation. नेक्स्ट क्या? ऑथेंटिसिटी। व्हाट इज ऑथेंटिसिटी? ऑथेंटिसिटी क्या है? ऑथेंटिसिटी मीन्स वेरीफाइंग द यूजर आर हु दे से दे आर, that each input arriving and destination is from a trusted secure. This principle is followed guarantee the valid and genuine message received from a trusted source through a valid transmission. क्या है ऑथेंटिसिटी? ऑथेंटिसिटी मीन्स वेरीफाइंग दैट यूजर्स आर who they saw they are a, that each input arriving at destination is from a trusted source. This principle, if followed, a guarantee and valid
and genuine message received from a trusted source through a valid transmission. For example, if take above example, sender sends the message along with digital signature, which was generated using the hash value of message and private key. Now at the receiver side, this digital signature is described using the public key, generating a hash value, and message is again hashed to generate. ऑथेंटिसिटी क्या है? अब तो लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो लॉकडाउन चलने के समय क्या होता है, हम लोगों का जो गवर्नमेंट का जो वर्क होता है और कोई प्राइवेट अथॉरिटीज का जो वर्क होता है, वहां पर तो साइन मैनुअली साइन नहीं होगा, तो वहां पर क्या यूज करता है, डिजिटल साइन यूज करता है। कोई सैलरी का जो चेक होता है और कोई ऑफिस का जो ऑर्डर होता है, वहां पर डिजिटल सिग्नेचर जो है वो एनक्रिप्टेड में होता है। वहां पर एक मैसेज होता है, वो रिसीवर को पहले ही भेज देता है। रिसीवर जब डिजिटल सिग्नेचर को वो देखेगा, वो मैसेज से डिजिटल सिग्नेचर को ओपन करेगा, वहां से उसको मालूम चल जाएगा कि ये सिग्नेचर सही है या गलत है, ठीक है। हेलो, अब तक कितने आदमी प्रेजेंट है? 7। हम लोगों का टोटल स्टूडेंट कैपेसिटी क्या है? हेलो शिखा कुमारी। यस सर। हेलो सर तुम्हारा स्टूडेंट कितना है? 7th सेम में 4th ईयर में तुम्हारा स्टूडेंट कितना है टोटल स्टूडेंट नंबर? सर टोटल 35 to 40। रोज 9 या 10 ही पार्टिसिपेंट प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? आज तो कल तो मैंने भेज दिया था। यस सर। बोलो सर आते शायद पता नहीं होगा हमें। एक थ्योरी सब्जेक्ट है, ये तुम लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। यस तो सर। ये तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी तुम लोगों को बाद में ही, तुम लोग जब सॉफ्टवेयर लाइन पे जाओगी, हायर स्टडी करोगे, तुम लोगों को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये तुम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का जो सिस्टम है ये तो दिन के दिन डिजिटल हो जा रहा है, तो डिजिटल होने के बाद सिक्योरिटी जो पार्ट है वो लैब पे तो नहीं है, लेकिन थ्योरी तुम लोगों को पता चल जाएगा जो क्या इंपॉर्टेंट है। ये तो तुम लोग जो क्रिप्टोग्राफी यूज करते हो, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ही एक पार्ट है। नेटवर्किंग जो यूज करता हो, वो नेटवर्किंग में भी ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऐड होता है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, मैं तो अभी कॉलेज में ज्वाइन किया हूँ, तो मेरे को ये सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तुम लोगों का जो इस 7th सेम में जो टाइम है उसके अंदर जितना हो सके, ठीक है। तो अगर तुम लोग जो है वो मैं PDF पे ही भेज दूंगा, अगर तुम लोगों को चाहिए तो। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं है, कट रहा है। कॉलेज पे नेटवर्क बहुत ज्यादा, देखो नेक्स्ट क्या आएगा? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम में, जे अकाउंटेबिलिटी मीन्स दैट इट शुड बी पॉसिबल टू ट्रेस एक्शन ऑफ एन एंटिटी uniquely to that entity. For example, as we discussed in integrity section, not every employee should be allowed to do change in other employees' data. For this, there is a separated department in an organization that is responsible for making such a change. And when they are received request for a change, then that letter must be signed by higher authority. क्या है? हम लोगों का जो डेटा है, शायद समझो हम लोगों का आधार कार्ड बन रहा है, ठीक है। तो आधार कार्ड का डेटा एक प्लेस है, वहां पर सिक्योर है, उस प्लेस पे सिक्योर है, वहां पर एक पार्टिकुलर
आदमी को एम्प्लॉय को वो परमिशन होता है कि वो वहां पर तो जरूरी होता है, जो साइन वो यूज करके वो चेंज कर सकते हैं। वही बोला है जे हम लोग जो इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं वो तो सच है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। अगर हम लोग को इंफॉर्मेशन चेंज करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन मॉडिफाई करना पड़ेगा और कुछ ऐड करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा, तो हम लोग वो कर सकता है। लेकिन उसको करने के लिए हम लोगों को वो जो सिक्योर ऑथेंटिक पर्सन है, उस ऑथेंटिक पर्सन से एक साइन लेना पड़ेगा। वो यूज करके शायद वो थंब एक्सप्रेशन हो सकता है, रेटिना का एक्सप्रेशन हो सकता है, वो ऑथेंटिक साइन होना पड़ेगा। तो वही बोला है, अकाउंटेबिलिटी मीन्स दैट इट शुड बी पॉसिबल टू ट्रेस द एक्शन ऑफ एन एंटिटी, यूनिकली do that entity. For example, as we discuss in integrity section, not every employee should be allowed to do changes in other employees' data. For this, there is a separated department in an organization that is responsible for making such changes, and when they receive request for a change, then the letter must be signed by higher authority. For example, director of college and person that is allotted that change will be able to the change after verifying his biometric. Thus, times details get recorded. We can say if change goes like this, then it will be possible to action इंक्वायरी टू एन एंटिटी। और क्या होता है, समझो हम लोग जो इंफॉर्मेशन एक सेंडर से एक रिसीवर को हम लोग भेज रहे हैं, व्हेन वी सेंड ए इंफॉर्मेशन सेंडर टू रिसीवर, बीच में अगर हम लोगों को मालूम हुआ कि मेरा जो प्रोफाइल है वो हैक हो गया है, व्हिच प्रोफाइल वी यूज्ड इट हैज बीन हैक, देन हम लोग अगर रिपोर्ट करते हैं साइबर सेल को, तो साइबर से क्या करेगा, वो मालूम कर लेगा जो कहां से हम लोगों का प्रोफाइल हैक हुआ है, तो वो एक्शन ले सकता है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक पार्ट है। हेलो, नाउ वी डिस्कस हार्डवेयर सिक्योरिटी। हार्डवेयर सिक्योरिटी, हम लोग हार्डवेयर सिक्योरिटी में क्या यूज करते हैं? Hardware security as a discipline originated out of cryptographic engineering and involves hardware design, access control, or secure multi-party computation. Secure key storage, ensuring code authenticity, measure to ensure that the supply chain that build the product is secure, among other things. क्या होता है, हम लोग जो हार्डवेयर यूज करते हैं, हार्डवेयर में हम लोग बहुत ज्यादा सिक्योरिटी यूज करते हैं। हम लोग जब इंप्रेशन देता है, जब रेटिना का स्कैन होता है, और जो हम लोग जो पेन ड्राइव और जो हम लोग मेमोरी यूज करता है, तो वहां पर भी हम लोग सिक्योर करना जानता है। वो वहां पे की क्रिप्टोग्राफी में जो की होता है, वो की यूज करके वो हम लोग सिक्योर कर सकता है। A hardware secure module is a physical computing device that safeguards and manage digital key for strong authentication and provides crypto processing. तो मैंने वो बोला, हम लोग जब कोई इंफॉर्मेशन कोई हार्डवेयर में हम लोग स्टोर करते हैं और कोई मेमोरी में हम लोग सेव करने के लिए रखता है, और हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए वहां पर हम की यूज करते हैं और लॉक कर सकते हैं वो इंफॉर्मेशन एक पासवर्ड से हम लोग अगर लॉक किए तो इंफॉर्मेशन हम लोग ही देख सकते हैं वो पासवर्ड पुट करके। वो पासवर्ड हम लोग जो पुट करेंगे वहां पर हम लोग ऑथेंटिकेशन देखेंगे कि वो जो हम लोग जो पासवर्ड दे रहा है वो आदमी सही है या गलत है।
वो day by day the technique was modified, and nowadays we use the retina or thumb impression और फेस लॉक, वो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग जो फोन यूज करते हैं, फोन में बहुत पहले हम लोग क्या करते हैं, वहां पर एक की होता है जो हम लोग पासवर्ड से देते थे, वो फोन हम लोग ही यूज कर सकता है, लेकिन और कोई यूज नहीं कर सकता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एक फोन में वो सिक्योरिटी का जो मॉडल है वो बहुत इम्प्रूव हो गया है। वो क्या हुआ है, हम लोग का थंब इम्प्रेशन से वो फोन ओपन कर सकता है, और क्या हो सकता है, फेस लुक से वो ओपन हो सकता है। यही बहुत सारा चीज है जो डे बाय डे अपडेटेड हो रहा है, और हम लोग का जो हार्डवेयर है वो हम लोग सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है, A hardware model is a physical computing device that safeguards and manages digital keys for strong authentication and provide crypto processing. These modules traditionally come in the form of plug-in card or an external device that attach directly to a computer or network server. Some providers in this discipline consider that the key difference between hardware security and software security is that hardware security is implemented using non-Turing machine logic, and one approach refers to a HARDSEC and uses FGPA to implementation non-Turing machine security control as a way of combining the security of hardware with the flexibility of software. हम लोग क्या करें, जो हार्डवेयर में हम जो यूज करते हैं वो बाद में हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर पे वो हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, एवं सॉफ्टवेयर से वो हम लोग सिक्योर कर सकते हैं कि वो सिक्योर, मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर है कि नहीं है। कितना लोग प्रेजेंट है, एक 3 6 या 9। देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ में और पीपीटी में अगर तुम लोगों को चाहिए मैं भेज दूंगा, वो बाद में तुम लोगों को जो जब टाइम मिले तो तुम लोग देख लेना, ठीक है। तो शायद तुम लोगों का अच्छा होगा वो दोबारा तुम लोग देखे तो। ओके सर। और बाद अलग जो लोग हैं वो तो सब चुप है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। नो वन साउंड विजिबल। ओके एलएमएस में दीजिए। तुम लोगों का ये 7th सेम कितना देर तक चलेगा, कौन सा मंथ में खत्म होगा, फरवरी में मालूम है? सर। ये तो सर फरवरी में खत्म हो फाइनल जाएगा। हो जाएगा। और यस सर। कैंपसिंग कैसा चल रहा है? सर कैंपस वो तो अब तो मेरे को जो मालूम है, अब तो तुम लोगों का बहुत फायदा हो रहा है। जो टेक्नो इंडिया का जो कलकत्ता का कैंपस है, जो कोलकाता में है, 2 या 3 शायद बहुत ज्यादा है, उन लोगों के साथ तुम लोग तो यस सर। तो तुम लोगों का पहले तो तुम लोगों को यहाँ से कलकत्ता जाना पड़ता था ना, तो अब तो ऐसे ही हो जाता है ऑनलाइन पर। देखो नेक्स्ट क्या है हार्डवेयर सिक्योरिटी में, A physical unclonable function is a physical entity that is embodied in a physical structure and is easy to evaluate but hard to predict it. Further, an individual PUF device must too easy to make but practically impossible to duplicate. Even given the exact manufacturing process that produced it, and in this respect it of the name unclonable function might be a little misleading, as some PFU are clonable and most PFU are noisy and therefore do not achieve the requirement for a function. क्या होता है, हम जो इंफॉर्मेशन यूज करते हैं वो
जो होता है वो अगर हार्डवेयर से हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करता है तो वो हार्डवेयर में जो चीज है वो एक ऑथेंटिक की के शायद यूज करने से वो सिर्फ जो कंपनी के लोग हैं और जो जिसके पास ऑथेंटिक पासवर्ड है वही यूज करता है, वो अलग से वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी क्या है, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कंट्रोल। ये हार्डवेयर गया, यहाँ पर है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कंट्रोल। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, security control play a fundamental software security control play a fundamental role in shaping the action cyber security professional take a protect and organization। देखो आज सिलेबस में हम क्या कर रहे हैं, टोटल जो चीज है वो तुम लोगों को बोल दे रहे हैं, नेक्स्ट डे क्या होगा एक के बाद एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, जो ऑथेंटिकेशन क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, फिर अलग जो चीज है वो क्या, माने जो मैंने टोटल 7 या 8 पॉइंट तुम लोगों को बोला है वो एक एक करके नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, फिर वो ज्यादा मालूम पड़ेगा ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोग जो यूज करता है वो चीज क्या होगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। सिक्योरिटी कंट्रोल, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कंट्रोल तो क्या हुआ, security control plays a fundamental role in shaping the action cyber security professional take to protect an organization. There are 3 main types of IT, including technical, administrative, and physical. The primary goal of implementing a security control can be preventive, detective, corrective, and compensatory, or act as a deterrent. Control are also used to protect people, as is the case with social engineering, awareness training, or policies। ठीक है, और क्या होता है, हम हिंदी थोड़ा थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि मैं बंगाली हूँ। ठीक है, तो तुम लोगों को तो हिंदी में भी बोलना पड़ेगा, अगर मैं इंग्लिश में वो डिस्कस करूंगा तो शायद कोई शूट हो जाए। ठीक है, the lack of control plays the confidentiality, integrity, and availability of information at a risk. These risks also extend to safety of people and asset within an organization. In this article, I am going to explain what a security control is and the difference between each type. Next, I will discuss the goal and this that each control is meant to achieve with example along the way. By the end, you will have a cyber security. What is the goal of security control? क्या है, मैं पहले भी बोला हूँ, what are the goal of security control? The overall purpose of implementing security control as previous helps reduce risks and organize. सिक्योरिटी कंट्रोल का मेन गोल क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो इंफॉर्मेशन उस लोगों के पास है, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करता है इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन को अलग जो उस कंपनी के अलग जो कंपनी है उन लोगों को से वो छुपाने के लिए। तो main overall purpose of implementing security control as previously maintained is help to reduce risks in an organization. In the other word, the primary goal of implementing security control is to prevent or reduce the impact of a security incident. Is based on in relation of the incident. The component types are listed along with their corresponding description.
हम लोग क्या करते हैं इस सिक्योरिटी सिस्टम को यूज करने के बाद प्रिवेंटिंग कंट्रोल अटेम्प्ट टू प्रिवेंट एन इंसिडेंट फ्रॉम ऑकरिंग। कोई भी इंसिडेंट अगर attempt to detect incident after they have occurred। जो डिटेक्टिव कंट्रोल होता है, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद वो उस कैसे मेकअप करेंगे, कैसे संभालेंगे हम लोग, इसलिए डिटेक्टिव कंट्रोल होता है। और डिटेक्टिव कंट्रोल का काम होता है इंसिडेंट अगर कोई हो गया उसके बाद वो कंट्रोल करता है। कंट्रोल अटेम्प्ट टू discern the impact of an incident or deterrent control attempt to individual from causing an incident, and compensating control are alternative control used when a primary control is not feasible. Implementing the control listed is no trivial matter. For example, an organization that plays a high priority on reducing risks usually has a risk profile which illustrates the potential cost of a negativity impacting risks and human resource required to a implementation of control। ठीक है, तो आज मैं जो सिलेबस है और सिलेबस में जो चीज है वो चीज मैं आज बोला हूं, लेकिन बाद नेक्स्ट जो क्लास होगा उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक पार्ट को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो पार्ट है वो क्या है, कैसे काम आता है, वो एक दिन डिस्कस करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, वो कैसे यूज होता है, इंटीग्रिटी चीज क्या है, इंटीग्रिटी चीज हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम में यूज करता है सिक्योर करने के लिए। अवेलेबिलिटी कैसे होता है, कोई एक इंफॉर्मेशन हम लोग के पास कैसे अवेलेबल होता है, हम लोग जो चाहे जब चाहे वो इंफॉर्मेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो एक एक चीज है एक एक चीज हम लोग बाद में बात करेंगे उसके बारे में। आज का क्लास तो 40 मिनट्स का था तो हो गया। नेक्स्ट डे जो है, ठीक है, नेक्स्ट डे में स्टूडेंट है, ठीक है, तो उन लोगों को बोलना एक दो क्लास करने के लिए, क्योंकि हमको भी तो प्रेजेंट देना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा, तो नंबर तो तुम लोगों को चाहिए। ठीक है, ओके सर। गोल्ड सुन रहे हो? शिखा कुमार तो सुन रहे थे। यस सर, यस गोल्डन कुमार, यस सर, यस सर, गौतम कुमारी, Yes, sir. रूपम, यस सर, मनीषा कुमारी, यस सर, विशु कुमारी, लवी खुजूर, Yes. Yes, sir. शुभम कुमार शर्मा तो शायद नहीं है, सुभाष सेन और त्रिलोक Yes, sir. महातो। यस सर, ठीक है, सब लोगों का मैं प्रेजेंट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो सब्जेक्ट है वो जस्ट पढ़ लेना, कोई ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम वो ये पढ़ने से तुम लोगों को अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? ये रियल टाइम यूज है, तुम लोग जो यूज कर रहे हो, ठीक है, वो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम लोग तो व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल तो यूज करते हो। ठीक है, वही तो है तुम्हारा इंफॉर्मेशन कैसे सिक्योर रहता है, सिक्योर रहने के लिए क्या क्या किया जाता है, वो तो है। तो तुम लोग पढ़ोगे तो बहुत अच्छा ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट डे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कल होगा। ठीक है, ओके सर, हेलो, यस सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मैं लूंगा, वो कल होगा। पहले लैब नहीं होगा, लैब में मैं थ्योरी बोल दूंगा क्या चीज है। ठीक है, बाद में लैब टाइम मिलेगा तो लैब 2-3 लैब हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके गुड सर, बाय। ठीक है, थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू। कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना। ठीक है। ठीक है सर।